Hello everyone, welcome back to my channel. So since the UGC NET exam is just around the corner, दिसंबर लास्ट हमके एग्जाम शुरू हो जाएंगे and so many of you wanted me to create a video जहाँ पे मैं आपको रिविजन के बारे में बता सकूँ, उसके इंपॉर्टेंस and the tips that how you can do a good revision so that you can qualify the UGC NET exam. So बहुत सारे बच्चे मुझे मेल कर रहे थे saying कि मैम आप कैसे आपने रिविजन किया था and now that I have learned everything, what do I do next? इसके बाद मैं क्या करूँ? So I thought कि ठीक है, because so many of you had the same query. So here's the video and today we'll see the perfect revision technique and this will definitely work for you because this worked for me and to all my dear friends and the people who were in contact with me. तो मैं रिविजन की बात बताई थी, रिविजन क्यों करना है, कैसे करना है and this is definitely going to help you. So let's start today's video. Okay, so we already know the importance of revision because no matter आपने कितना ज़्यादा पढ़ लिया है, ठीक है, to retain all of it, आपको जो सब चीज़ें याद रहे, it's very important that you revise well. Because अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, no matter आपको कितना ज़्यादा आता है, आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, you won't be able to remember it at the time of the exam. वैसे भी इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, उसके बाद to go back and कि सोचना कि क्या था, वो नहीं हो पाएगा अगर आपने अच्छे से रिवीजन नहीं करा है. सो मेक श्योर दैट यू रिवाइज वेरी वेरी वेल. ठीक है, नाउ हाउ टू डू द रिविजन. सो मेक श्योर दैट यू मेक रिविजन योर प्रायोरिटी बिकॉज लास्ट एक महीना है, इसमें रिविजन एंड मॉक टेस्ट, दीज आर द ओनली टू थिंग्स विच यू मस्ट बी डूइंग. ठीक है, तो मॉक टेस्ट मैंने आपको पिछली वीक वीडियो में बताया था कि मॉक टेस्ट कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. सो इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो प्लीज गो चेक माय चैनल, आपको उसमें लास्ट वीडियो मिल जाएगी रिलेटेड टू मॉक टेस्ट. And then second, here we are going to talk about the revision technique. कैसे करें, किन पॉइंट्स को ध्यान दें, किन पॉइंट्स को ना ध्यान दें. And if you're someone who is preparing for UGC NET exam, I have these two books for you and these are from Oswald books. These are very very helpful because first is a mock test paper and second we have 19 previous solved papers. And as I've always tell ki previous year questions are very very important and mock test again is very important. So you can refer to these two books. So this is Oswald 19 previous year solved papers and this has all the previous year papers. This has exam pattern, eligibility criteria, latest syllabus, cutoffs are also mentioned. Now these are some questions and it has detailed explanation of it as well. Now next book we have 15 mock test paper and it is very very important and very very good explanations are also given here. As you can see, definitions are there, trend analysis are also mentioned. This is the mock test paper sample and with again a detailed explanation of each and every answer. Moving ahead, we see this mind map, very very important, and these are two books approved by me. I hope it helps. So if you're someone who is interested to buy it, you can use my coupon code POOJA10 and you will get a huge discount on it. Also मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है. मेक श्योर टू चेक इट आउट and I hope this helps you to qualify the UGC NET exam. Okay, so coming back to our topic, now how will you revise? क्या रिवाइज करना है, कैसे करना है, something to learn. So first of all, रिवीजन में क्या क्या रखना है. रिवीजन में मैंने पहले भी बहुत वीडियोस बनाई है जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे. ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट यूनिट्स. वी ऑल नो कि दो UGC NET क्लेम करता है कि सब जगह से सब कुछ आता है, बट वी नो कि देयर आर सर्टेन यूनिट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, जैसे कि रिसर्च हो गया आपका, ठीक है, हाई एजुकेशन हो गया. यहाँ पे से क्वेश्चंस हमेशा से आते ही आते हैं एंड वी नो कि किस किस एरिया से आ रहे हैं. ठीक है, तो उन सारी इंपॉर्टेंट यूनिट्स को हाईलाइट करो, उनके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हाईलाइट करो. ठीक है, और केवल उन्हीं को पढ़ना. बिकॉज लास्ट एक महीने में अगर आप ये सोचते हैं कि आप सब पढ़ लेंगे, सब कर लेंगे, नहीं हो पाएगा. वैसे भी हमारे पास अब कम दिन रह गए हैं. सो आई जस्ट वांट टू शेयर कि आप लोग सिर्फ वही पढ़े जो इंपॉर्टेंट है, जो नहीं है ना उसको छोड़ देना. एंड सेकेंड थिंग कि अगर आपको लगता है देयर आर सम थिंग्स जो सम टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं एंड आपको नहीं समझ में आ रहे थे तो आपने वो छोड़ दिए, तो उनको रहने दो, स्किप दैट. ऑल यू नीड टू डू नाउ इज कि आपको जो भी आता है उसको अच्छे से रिवाइज करो, इतने अच्छे से रिवाइज करो कि उस यूनिट से या फिर उस रिलेटेड टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन आए आप उसको अटेम्प्ट कर सकें. सो इस टाइम सिर्फ उन्हीं सारी चीज़ों में आपको ध्यान देना है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आती हैं, एक्चुअली पूछी जाती है. लाइक वी नो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से हो गया, आपके पास कुछ ना कुछ आता ही आता है. ओके, इंडियन लॉजिक सिस्टम से हमें पता है कि इंडियन लॉजिक से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ निकल के आएगा. एंड दीज आर सम क्वेश्चन जो कि हमसे पूछे ही जाते हैं. ठीक है, तो आपने जो भी अपने PYQs देखे होंगे, बिकॉज अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग PYQs हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग इंपॉर्टेंस है टॉपिक्स. तो आप जब भी PYQs देखेंगे वो समझ में आ गया होगा कि लास्ट 5 साल में ये वाली जगह से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं.
ठीक है। एंड नाउ दिस डिफर्स फ्रॉम एवरी पेपर, ठीक है, दिस रिफर फॉर एवरी, लाइक मेरा मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म है तो मुझ में मेरे पीवाईक्यूज वर डिफरेंट, मेरे से जहाँ से पूछा गया है इट वाज डिफरेंट, इंग्लिश के लिए अलग होता है, हिस्ट्री के लिए अलग है, कंप्यूटर साइंस के लिए अलग है। सो मेक श्योर कि आप उस चीज पे ध्यान दें। सेकेंड इज सी, जो आपका वीक पॉइंट है ना उसको तो छोड़ ही दो, उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। नाउ रिवीजन करना कैसे है, स्टार्ट फ्रॉम पेपर 1 और पेपर 2। नाउ व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड विद पेपर 2, क्योंकि मेरा पेपर 2 अच्छा था, ठीक है। सो आई न्यू कि पेपर 2 में मैं अच्छे मार्क्स लेके आ सकती हूँ। एंड पेपर 2 हैज ऑलवेज बीन समथिंग जिसने मेरे को अच्छे मार्क्स दिलाए हैं, ठीक है, बिकॉज माई पेपर 2 वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो पेपर 2 पे रिवीजन करना स्टार्ट करो, वो जो 10 यूनिट है उसे कंप्लीट करो। सबसे पहले पेपर 2 पे बहुत ज्यादा फोकस करो। नाउ व्हाट यू कैन डू, अगर आप दिन के 5 से 6 घंटे लगा रहे हैं तो मेजरली 4 घंटे पेपर 2 करो और बाकी के 2 घंटे पेपर 1 करो। बिकॉज अगर आप पेपर 2 ही पढ़ते रहेंगे यू विल गेट बोर्ड, ठीक है, आपको बोरिंग शायद से लगने लग जाए। सो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा ना पेपर 1 पे भी कुछ इंटरेस्टिंग पढ़े, बट ज्यादा तो मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम शुड बी गिवन टू पेपर 2, ठीक है। एंड उसके बाद लाइक 10 दिन अगर आपने उसका रिवीजन करा है, उसके बाद अगले 10 दिन पेपर 1 को दो, और पेपर 1 में लाइक 4 घंटे पेपर 1 को दो और 2 घंटे पेपर 2 को दो, ठीक है, ये कर सकते हो। उसके बाद जो एक हफ्ते में रिवाइज करा है, वीकेंड में जाके या फिर वीक में 2 बार उसके मॉक टेस्ट लगा लो, जिसमें जैसे सी कि मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 करी, ठीक है, एक हफ्ते में, अब उसके मॉक टेस्ट चाहिए मुझे, तो टू टेस्ट माई सेल्फ व्हाट आई विल डू, आई विल गिव मॉक टेस्ट। तो आप मॉक टेस्ट लगाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आप सेम उसी यूनिट से कुछ लेके आएंगे, कुछ पढ़ के आएंगे, देन यू विल टेस्ट योरसेल्फ, तो यू विल रियलाइज कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। यू विल बी एबल टू एनालाइज कि क्या आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्या आप सही चीजें कर रहे हैं। एंड डोंट लाई टू योरसेल्फ, ऑफ कोर्स, मतलब आपको पता है कि आपने कितना पढ़ा है, आप कितने अच्छे से पढ़ सकते हैं, कितना आ रहा है नहीं आ रहा है। सो खुद से झूठ तो नहीं बोलना है, खुद का टेस्ट दो, 0 मार्क्स भी आ रहे हैं ओके, बट यू मस्ट नो कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं, सो दैट व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द एग्जाम ना यू वोंट फील डिसअपॉइंटेड। बिकॉज ये होता है कि हमें लग रहा होता है कि हमें सब आ रहा है, बट वंस वी आर गिविंग दैट एग्जाम हमें ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मुझे आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको पता हो कि एग्जाम कैसे, मतलब पेपर कैसे कैसे आया जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, टू रियलाइज इट प्लीज गिव मॉक टेस्ट। तो पहले आप क्या करें, एक हफ्ते में रिवीजन जो भी करा है उसका हर वीकेंड या वीक में 2 बार सेट कर लो, जब भी आपको लग रहा है, वेडनेसडे, सैटरडे और ट्यूसडे, फ्राइडे, ऐसे करके, और मॉक टेस्ट देना शुरू करो, ठीक है। तो पेपर 1 को भी पहले कर सकते हो, पेपर 2 को भी कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि जो चीज स्ट्रॉन्ग है ना उसको पहले कर लेना। अगर आपका पेपर 2 स्ट्रॉन्ग है तो उसको पहले रिवीजन में ज्यादा प्रायोरिटी दो, और अगर आपका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग है तो पेपर 1 को ज्यादा प्रायोरिटी दो, ठीक है। और अब लास्ट के महीने में आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, दैट इज रिवीजन। रिवाइज एज मच एज यू कैन, जितना पढ़ सकते हो। किसी नई टॉपिक पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आई ऑलवेज से कि लास्ट के महीने में ये नहीं ध्यान देना कि ओहो मेरा ये छूट गया है, मेरा ये छूट गया, ओ माय गॉड दिस टॉपिक। अगर आपको ये लगता है कि कोई एक छोटा टॉपिक है जो आप एक दिन में कवर कर सकते हैं एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ही उसको एक दिन देना, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा ये 20-25 दिन कहाँ चले जाएंगे। रिवीजन, मॉक टेस्ट, इन्हीं में सब में सारा टाइम निकल जाता है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर योरसेल्फ वेल फॉर इट। तो प्रिपरेशन तभी अच्छी होगी जब जो आपने अभी ओवर द मंथ्स पढ़ा है ना, 4-5 महीने में जो पढ़ा है वो दिमाग में तभी रहेगा जब आप उसे रिवीजन करेंगे। एक बार रिवीजन हो गया डन, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, बट रिवाइज एज मच एज यू कैन। उससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है, उससे आपको आपको समझ में आता है कि और क्या क्या डिटेलिंग है, ये इंपॉर्टेंट है नहीं है। द मोर यू विल रिवाइज द बेटर यूल हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। सो मेक श्योर दैट यू रिवाइज वेल, ठीक है। बाकी 15 से 20 दिन है, इसमें आपको सिर्फ एक रिवीजन और एक मॉक टेस्ट, यही दोनों चीजें करनी है। रिवीजन लगाओ फिर मॉक टेस्ट करो, रिवीजन लगाओ फिर मॉक टेस्ट करो, ठीक है। एंड टेस्ट योरसेल्फ, प्लीज डू, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन स्टूडेंट जो कि खुद को पता नहीं, मतलब आई हैव सीन कि शायद से खुद से झूठ बोलने वाली भी कैटेगरी होती है, वे दे लाई टू देमसेल्फ कि नहीं मुझे आ गया है, बट जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तब तक आप खुद को भी नहीं जज कर सकते हैं। सो खुद ही मॉक टेस्ट लगाओ, देखो कि कितने आ रहे हैं। लाइक आई हैव टोल्ड यू अबाउट अदर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह करते हैं, तो आप देखो वहाँ पे रैंकिंग भी आती है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि लोग कितना अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं। डरने की कोई बात नहीं है, ऑल यू आर डूइंग इज यू आर टेस्टिंग योरसेल्फ एंड यू हैव इनफ टाइम टू रेक्टिफाई इट। अपनी जो भी गलतियां हैं उसको आप सही भी कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। अभी भी 15 से 20 दिन है, आराम से सब कुछ कर पाओगे, नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है। So yeah, that's it for today's video. I hope this was helpful. This was just something very personal which I wanted to share, and I really hope that this was a very helpful video to you. Yeah. So I'll see you in my next video. Till then, tada bye bye. Let me know अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं. Please keep recommending me about all your wishes and your choices and whatever you would like to see. I'll see you in my next video. Till then, tada bye bye. Take care.